Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 3 English chapter 2 Smile with a Blessing. So let us begin question answers. Question number 1 is tick against the correct option. Correct option के आगे हमें tick करना है. First is an old lady was going to. Option A is hospital, option B is school, option C is temple and option D is market. An old lady was going to. Old lady कहाँ जा रही थी? Hospital, school, temple और market. She was going to market. So option D is correct. So we will write here option D. Okay students, next is the old lady stepped on the peel of. किसके छिलके पर उनका पैर पड़ा था? Option A is an apple, option B is a banana, option C is a papaya and option D is an orange. So which option is correct? Option B, a banana. So we will write here B, banana peel. Next is the old lady said to Meena. Old lady ने मीना से क्या कहा? Option A, sorry, option B, excuse me, option C, thank you and option D, nothing. क्या कहा था old lady ने मीना से? Thank you. So option C is correct. So we will write here option C. Now answer the following questions. Question number 1 is what was the old woman carrying? Old woman ने क्या कैरी कर रखा था? क्या पकड़ रखा था हाथ में? Answer is the old woman was carrying a basket of fruits. Fruit की बास्केट टोकरी पकड़ रखी थी उन्होंने. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड? ओल्ड लेडी जो नीचे गिर गई थी उसको खड़े होने में किसने हेल्प करी थी? किसने करी थी? मीना. सो आंसर इज मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड. मीना ने उस ओल्ड लेडी को हेल्प करी थी खड़े होने में, जबकि बाकी जो पीपल वहाँ थे वो क्या कर रहे थे? दे वर लाफिंग एट हर. वो उन पर हंस रहे थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मीना थ्रो द बनाना पील? मीना ने बनाना पील, केले का छिलका कहाँ फेंका था? कहाँ फेंकना चाहिए था? इन डस्टबिन. सो करेक्ट आंसर इज Meena threw the banana peel into a dustbin. She threw banana peel into a dustbin because that was the right place for rubbish or garbage. Next question, what did the old lady give to Meena? Old lady ने मीना को क्या दिया था? Old lady ने मीना को blessings दी थी. So answer is the old lady gave blessing to Meena. उस मीना को old lady ने आशीर्वाद दिया था. Okay students. Now look at the picture given below. There are various types of fruits in the basket. इस पिक्चर को देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दे रखे हैं बास्केट में. सी, ये एक बास्केट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स रखे हुए हैं. राइट देयर नेम्स बाय चूजिंग अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. और कुछ फ्रूट नेम यहाँ बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं. तो हमें क्या करना है? हमें फ्रूट को देखना है और बताना है कि कौन सा फ्रूट कौन सा है. इनमें से एक वर्ड लेके हमें लिखना है कि कौन सा फ्रूट है ये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
फ्रूट्स कौन कौन से दे रखे हैं नेम? एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड पपाया. सो बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज watermelon. So we will write here watermelon. Watermelon. Okay. Next, which fruit is this? ये कौन सा fruit है? This is papaya. So we will write here papaya. P-A-P-A-Y-A. papaya. Okay, papita. Next, which fruit is this? ये कौन सा फ्रूट है हमारा? ये है बनाना. और कौन से फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको इस बास्केट में? This one? Which fruit is this? Grapes. So we will write here grapes. Now this is orange. ये हम यहाँ orange लिख देंगे. Now which fruit is this? This is apple. So we will write here A-double-P-L-E apple. So हो गए आपके फ्रूट्स एप्पल, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, बनाना एंड ग्रेप्स. सो जस्ट ईट द फ्रूट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज लुक एट द पिक्चर्स. पिक्चर्स को हम देखेंगे ध्यान से. सम फ्रूट्स आई पील बिफोर ईटिंग एंड सम आई ईट विद स्किन. कुछ फ्रूट्स को तो हम पील करके मीन्स छील के खाते हैं और कुछ फ्रूट्स को हम उनकी स्किन के साथ ही खा जाते हैं, मीन्स सिर्फ वॉश करके हम उनको ऐसे ही खा जाते हैं, उनको पील नहीं करते हैं. राइट P for the fruit you eat after peeling and S for the fruit you eat with skin. यहाँ कुछ फ्रूट्स आपको जो दे रखे हैं उनमें आपको ये देखना है कि ये कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिनको आप जब उनको पील करके खाते हैं तो उनके आगे P लिखेंगे और स्किन के साथ खाते हैं तो उनके आगे S लिखेंगे. अब आप ध्यान से ये देखिए पिक्चर्स, कौन कौन से फ्रूट हैं ये. दिस इज ऑरेंज. सो स्टूडेंट्स, ऑरेंज को आप कैसे खाते हैं? टेल मी. पील करके खाते हैं. सो वी विल राइट हियर पी. बनाना. बनाना को कैसे खाते हैं हम? पील करते हैं या स्किन के साथ खाते हैं? पील करके खाते हैं. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट हियर P because it is written write P for the fruit you eat after peeling and S for the fruit you eat with skin. जिनको स्किन के साथ खाते हैं उनके आगे S लिखेंगे. This is पपाया. पपाया को भी हम पील करके खाते हैं. So we will write here P. Okay. Next, this is मैंगो. मैंगो को भी हम पील करके खाते हैं. एंड दिस इज एप्पल. एप्पल को हम स्किन के साथ खा सकते हैं और बिना स्किन के भी खा सकते हैं, मीन्स आप इसको पील भी करके भी खा सकते हैं और बिना पील किए भी खा सकते हैं. बट हेल्दी होता है बिना पील किए खाना, इसको स्किन के साथ खाना. सो वी विल राइट S because there is no need to peel apple. एप्पल को आपका छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल को आप ऐसे ही खा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेप्स. ग्रेप्स को आप पील करते हैं? नो. ग्रेप्स को तो हम ऐसे ही वॉश करके खाते हैं. सो व्हाट वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? P और S. बिकॉज we eat grapes with
स्किन, उसकी स्किन के साथ में हम खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम S लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ऑपोजिट्स of the words listed below. You may choose these words from the box. कुछ वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं, हमें इनके अपोजिट्स लिखने हैं और हमें कहाँ से अपोजिट्स चूज करने हैं, इस बॉक्स में से. ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ? शॉर्ट, एम्प्टी, स्टॉप, वीप, सिट, टेक, आउट. ये वर्ड्स हमें दे रखे हैं, ये अपोजिट वर्ड्स हैं. सो वी विल चूज इट and write it here. Okay students, so let us start. First हमको example दे रखा है old, opposite of old is young. Now we will do rest of the questions. Next is start, and what is the opposite of start? Start का opposite क्या होता है? Stop. So we will write here stop. Opposite of start is stop. Means कुछ काम start करना, शुरू करना, और stop means उसको बंद कर देना. So this is the opposite of start. Next is give. Give means देना, and opposite of give is take, लेना. give का opposite क्या हो गया? take. in means अंदर, and opposite of in is, इनका opposite क्या होगा? out, बाहर. So we will write here out. Opposite of in is out. Next is stand. Stand means खड़े होना, and opposite of stand is बैठना, and its proper word is sit. So we will write here sit. So opposite of stand is sit. Stand का opposite क्या हो गया? sit. Next is laugh means हंसना, और इसका opposite क्या होगा? रोना, and it's weep. Weep means रोना. So opposite of laugh is weep. Next is tall. Tall means लंबा, और इसका opposite क्या होगा? short. Short means छोटा. So we will write here short. Opposite of tall is short. Next is full. Full means पूरा भरा हुआ, and opposite of full means खाली. So खाली means empty. So we will write here empty. E-M-P-T-Y, empty. So opposite of full is empty. Okay students, did you understand it? Now name the activity as shown in the following pictures by choosing words from the box. See the picture. ये एक पिक्चर है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं. अब ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? यहाँ जो बॉक्स दे रखा है उसमें से हम देखेंगे और उसको लिखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं ये. सो लेट अस स्टार्ट इट. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं? ईटिंग, प्लेइंग, लाफिंग, कैरिंग, स्किपिंग, डिगिंग, हाइडिंग, वाटरिंग. ईटिंग मीन्स खाना, प्लेइंग खेलना, लाफिंग हंसना, कैरिंग कुछ चीज पकड़ के लेके जाना, स्किपिंग रस्सी कूदना, डिगिंग खोदना, हाइडिंग मीन्स छुपना, और वाटरिंग पौधों को पानी देना. सो लेट अस स्टार्ट. अब देखिए आप सबसे पहले किस में क्या आएगा, कौन सी एक्टिविटी कौन सी आएगी. व्हाट ही इज डूइंग, ये क्या कर रहे हैं दोनों बॉयज? दे आर प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहे हैं ना. सो वी विल राइट हियर प्लेइंग. एंड सी व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग, ये गर्ल यहाँ बैठ के क्या कर रही है? शी इज
ईटिंग समथिंग, वो कुछ खा रही है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ईटिंग, बिकॉज शी इज ईटिंग समथिंग। सी द वुमेन, ये वुमेन क्या कर रही है? ये वुमेन कुछ कैरी करके लेके जा रही है इस बास्केट में। वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं। सो क्या एक्टिविटी कर रही है ये? कैरिंग। सो हम लिखेंगे यहाँ से कैरिंग, CARRYING। कोई चीज़ लेके जाना, होल्ड करके लेके जाना, दैट इज कॉल्ड कैरिंग। नाउ सी द बॉय, ये बॉय क्या कर रहा है? ये बॉय छुप रहा है किसी से। सो वी विल राइट हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग। नाउ सी व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग। ये गर्ल क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है। इसको क्या कहते हैं हम? स्किपिंग। सो वी विल राइट हियर skipping, SKIPPING, skipping। ये बॉय क्या कर रहा है? What he is doing? See the box, he is watering, प्लांट्स को पानी दे रहा है। So we will write here WATERING, watering। Okay students, now see what he is doing। ये बॉय क्या कर रहा है यहाँ पे? ये कुछ खोद रहा है। सो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इनमें से हम? डिगिंग। डिगिंग मीन्स खोदना, गड्ढा खोद रहा है वो। तो हम यहाँ लिखेंगे डिगिंग, DIGGING, digging। and see what they are doing। ये दोनों क्या कर रहे हैं? बॉय हंस रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो इस बॉक्स में से क्या आएगा? laughing। so we will write here laughing, LAUGHING। so these activities, all these are doing। ये सारी एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं। ये कैरिंग कर रही है, ये हाइडिंग, दिस गर्ल इज स्किपिंग, दिस बॉय इज वाटरिंग, दिस बॉय इज डिगिंग, and these two boys are laughing, and these two boys are playing, and this girl is eating। okay students, now you got it। now next activity, teacher will recite a poem, we will sing a poem। so let's start। water and soap will make you sweet, brush and comb will keep you neat। वाटर एंड सोप विल मेक यू स्वीट। वाटर और सोप मिलके आपको क्या करते हैं? स्वीट बनाते हैं, साफ कर देते हैं। ब्रश एंड कॉम्ब विल कीप यू नीट। आप ब्रश करते हैं टीथ को और हेयर्स को कॉम्ब करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? साफ सुथरे, अच्छे, तैयार हो जाते हैं। बट सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू विल मेक अ स्वीटर चाइल्ड लाइक यू। लेकिन सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू वर्ड्स अगर आप कहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे बन जाते हैं। ये हमारे गुड मैनर्स हैं कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप सॉरी बोलें, और कोई आपके लिए किसी ने अच्छा वर्क किया है तो उसको आप थैंक यू बोलें। किसी को आप कोई वर्क कह रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ बोलें। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब इन पिक्चर्स में देखिए, ये लेडी इसको कुछ गर्ल को दे रही है। सो व्हाट डिड शी सेड? क्या बोला उसने? थैंक यू। और सी इन दिस पिक्चर, इस बॉय ने इस ओल्ड मैन को हर्ट कर दिया है। उसकी साइकिल से आई थिंक उसके लग गई है, तो इस बॉय ने क्या बोला? आई एम सॉरी। इसने उनसे सॉरी मांगा। नाउ वी विल fill these sentences with I am sorry or thank you।
So let's start. Ravi helped Sita in her homework. रवि ने सीता को उसका होमवर्क फिनिश करने में हेल्प करी है. What will सीता say? तो सीता रवि से क्या कहेगी? I am sorry और thank you. I am sorry कहेगी या thank you कहेगी? Thank you. She will say thank you to Ravi. Okay students, because Ravi help her. रवि ने सीता को हेल्प करी है इसलिए वो उसको थैंक यू बोलेगी. सेकेंड इज योर फ्रेंड विशेज यू हैप्पी बर्थडे. व्हाट विल यू से टू हिम? आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे विश किया है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी और थैंक यू? थैंक यू. इफ समवन विशेज यू, यू विल से थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज यू हैव लॉस्ट योर फ्रेंड्स नोटबुक. आपसे अपने फ्रेंड की नोटबुक खो गई है. व्हाट विल यू से टू हिम? अब आप उससे क्या बोलोगे? आई एम सॉरी बोलोगे कि थैंक यू बोलोगे? आपने मिस्टेक करी है, आपसे उसकी बुक खो गई है, नोटबुक खो गई है. सो यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक. आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और आप क्या बोलेंगे उसको? आई एम सॉरी. सो you will say I am sorry. Okay students, now your grandfather gives you a toy. आपके grandfather ने, दादाजी ने आपको एक टॉय दिया है. What will you say to him? आप उनसे क्या बोलेंगे? Thank you और sorry? Thank you. So you will say thank you to your grandfather. अपने grandfather को आप बोलेंगे Thank you grandfather. Now write 5 sentences about your grandparents with the help of following chart. आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं. ये चार्ट देखिए. इस चार्ट को देखकर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, नाना नानी, इनके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. क्या सेंटेंस लिखेंगे आप? ये आपको बता रखा है. माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, और वर्ड्स आपको दे रखे हैं लवली, काइंड, केयरिंग, ट्रूथफुल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, ऑनेस्ट एंड शेयरिंग. तो आपको इस लाइन से ये वर्ड्स लेते हुए सेंटेंस कंप्लीट करना है और राइट डाउन करना है. कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं? लवली, काइंड, केयरिंग, ट्रूथफुल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, ऑनेस्ट और शेयरिंग. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस आपको दे रखा है माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लवली. सो अब हम सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे माई ग्रैंड पेरेंट्स आर काइंड. KIND, kind. नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट वी विल राइट, जो उनमें से आपको वर्ड्स दे रखे थे. माई ग्रैंड पेरेंट्स आर कैसे हैं? ऑनेस्ट हैं, ईमानदार. नेक्स्ट इज माई ग्रैंड पेरेंट्स, और कौन से वर्ड्स दे रखे थे आगे? आर केयरिंग, वो केयर करते हैं दूसरों की. नेक्स्ट क्या है आपको वर्ड, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? माई ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रेंडली, वो मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, एक फ्रेंड की तरह, हमेशा डांटते नहीं रहते हैं, वो मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं. सो these are 5 sentences about your grandparents. I hope you all understand it. Students, these were question answers of your chapter 2, Smile with a Blessing. Do all question answers in your English notebook.
I hope you all understand it. Thank you and have a good day.